حدیث شریف کے الفاظ سنیے. انا، کیا بات بھائی تھک گئے آپ لوگ؟ نبی فرماتے ہیں سب سے بہترین شادی وہ ہے. حدیث شریف کے الفاظ ہیں انا اعظم النکاح ہے برکتن ایسرہ مؤمنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین شادی وہ ہے جو کم سے کم خرچ میں منعقد ہو جائے. ماشاءاللہ. بولو بھائی بولو سبحان اللہ. اور میرے نبی نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر لڑکے کی شادی ہو تو آقا فرماتے اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا ہی صحیح، ولیمہ کرو ہے نا. اور اس ولیمے میں امیروں کے ساتھ ساتھ غریبوں کو بھی بلایا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ ابو داؤد شریف کی حدیث نبی فرماتے ہیں شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء. نبی فرماتے ہیں سب سے برا کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے کہ جس میں امیروں کو تو بلایا جائے اور بیچارے غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. اللہ اللہ اللہ. یہ میں جانتا ہوں کہ امیروں کی دوستی امیروں سے ہوتی ہے، غریبوں کی دوستی غریبوں سے ہوتی ہے. امیر لوگ امیروں ہی کو بلاتے ہیں، مگر ان سے گزارش ہے کہ چند غریبوں کو بھی ضرور بلا لیا کرو، ورنہ وہ بہت برا کھانا ہے. نبی فرماتے شر الطعام، برا کھانا ہے وہ کہ جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. اللہ اللہ. سمجھ رہے بھائیو؟ ہاں جب 10واں ہوتا ہے، 20واں ہوتا ہے، 40واں سیوم کی فاتحہ تو آگئے نگھاسن میں قاری اجمل صاحب کے مدرسے حضرت صاحب بچے بھیج دیجئے اور ساتھ میں آپ کی بھی دعوت ہے. اللہ اللہ. اور اگر یہ نہیں گئے بچوں کو بھیج دیا تو یہ تو نہیں جائیں گے تو مدرسے کا چندہ ختم. اللہ اللہ. تو جب 10واں ہے 20واں ہے تو مدرسے کے بچے یاد آتے ہیں، اور جب شادی بیاہ ہے تو غریب تو بلاتے ہیں مدرسے کے بچوں کو، لیکن یہ سیٹ اور امیر مدرسے کے بچوں کو بلانا آج کی تاریخ میں اپنی توہین سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بڑے بڑے رشتہ دار آئیں گے، یہ مدرسے کے بچے جو ہیں جھومتے جھامتے آئیں گے میلے کچالے کپڑے پہن کر کے. ارے امیر جی، سیٹ جی، تم نے ان کے میلے کچالے کپڑے دیکھے ہیں، تم میلے کچالے کپڑے دیکھتے ہو، لیکن تمہارے نبی، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ فرماتے ہیں ان میلے کچالے کپڑے پہنے والوں کے قدموں کے نیچے اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھائے چلتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلی حضرت، فیضان قرآن، اعجاز قرآن، شان قرآن، حق خطابت. واہ واہ واہ، بہت عمدہ. اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، قاری احمد صاحب آپ کا علاقہ ہے، آپ کو زیادہ معلوم ہوگا، طارق بھائی جی، موہاں کفیل صاحب، اشد بھائی سب اس علاقے گئے. کہیں کہیں کسی گاؤں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں دعوت دو یا نہ دو، سمجھ گئے نا؟ نہیں سمجھے؟ دعوت دو یا نہ دو لیکن ہر جگہ وہ موجود ملیں گے آپ کو. انہیں بس پتہ چل جائے فلاں گاؤں میں شادی ہے اور دعوت ہے تو انہیں دعوت دو یا نہ دو وہ پہنچ جاتے ہیں بغیر دعوت. تو ایک ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی شادی کی دعوت دے تو اس کی دعوت کا انکار نہ کرو، اس کی دعوت کو قبول کرو، چونکہ جس نے بنا وجہ شرعی کسی کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. نبی اسی حدیث میں ابو داؤد شریف کی حدیث میں، اور جو بغیر دعوت کے کہیں کھانے پہنچ جاتا ہے تو وہ چور بن کے داخل ہوتا ہے، ڈاکو بن کے باہر نکلتا ہے. اللہ اللہ. ایک ہوتا ہے چور، چور وہ ہوتا ہے جو گھر والا سویا وہ آیا اور مال کا سفایا، یعنی گھر والے سو رہے ہیں وہ آیا مال لے کے بھاگ گیا، وہ چور ہے. اور جو آیا کان پہ لگایا جگایا مال کا سفایا اسے
سمجھ گئے؟ تو نبی فرماتے ہیں جو بغیر دعوت کے کہیں کھانے پہنچ جاتا ہے وہ چور بن کے داخل ہوتا ہے اور ڈاکو بن کے باہر نکلتا ہے۔ اللہ اللہ، 2 بوٹیوں اور 2 روٹیوں کی خاطر اپنے آپ کو شریعت کے نزدیک چور مت بناؤ۔ جی ہاں، بغیر دعوت کے ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، ایک صاحب بعد میں آئے، بولے حضرت اور اگر دعوت ہو تب میں سمجھ گیا یہ بغیر کے دعوت کے کہیں نہ کہیں جوار لگا لیتے ہیں۔ میں نے کہا بھئی دعوت ہو تو جاؤ ورنہ مت جاؤ۔ تو کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اس حدیث شریف کو جب دعوت کیا کرو تو ابو داؤد شریف کی حدیث انوار الحدیث میں بھی مل جائے گی، اس کو لکھ کے ذرا باہر لگا دیا کرو تاکہ کم سے کم لوگوں کو حدیث بھی یاد ہو جائے اور اسلامی قانون تو تبھی پر یاد ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تھوڑی سی بات اور سنیے، جب کسی مسلمان کا نکاح ہوتا ہے تو شیطان ہائے ہائے کہہ کر کے روتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے اپنا 2/3 ایمان مجھ سے بچا لیا، یعنی ایمان کے 3 حصے کر دو تو شیطان کہتا ہے اس نے 2 حصے ایمان اپنا بچا لیا۔ یعنی مسلمان لڑکوں کی جب شادی ہوتی ہے تو شیطان روتا ہے، اس لیے شیطان کو رلاؤ اور اللہ طاقت دے تو بچے جتنے ہوں اتنے قبول کرو تاکہ چھوٹا شیطان بھی روئے اور بڑا شیطان بھی روئے۔ سمجھ نہیں پاتے ہو یار، تھوڑا سا بولو نا سبحان اللہ۔ تو شیطان کو رلانے کی عادت ڈالو، ہے نا؟ ویسے نہیں رلا سکتے تو آپ کے پاس ہے نا اور ذریعہ، تو رلاؤ شیطان کو، ثواب پاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی شادی ہو گئی اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا اور آدھے ایمان کے بارے میں اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرات میرے نبی یہ بھی فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث سے غالباً آقا فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ نبی فرماتے ہیں یہ دنیا بہترین متاع ہے۔ توجہ چاہوں گا سارے حضرات کی، بس تقریر ختم ہونے والی ہے تو اسے توجہ فرمائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں یہ دنیا، چونکہ میری عموماً عادت یہی رہتی ہے کہ جس موضوع کا جلسہ ہوتا ہے کوشش کرتا ہوں وہی باتیں وہاں کی بھی جائیں۔ کیا بات، قاری احمد صاحب کے یہاں ہم گئے تھے تو پوری تقریر قرآن شریف کے حوالے سے کی گئی تھی، چونکہ جشن دستار بندی کا موقع تھا اور آج شادی کا موقع ہے۔ ہاں جی جی، آج شادی کا موقع ہے تو کم سے کم اس پر بیان ہو جائے تاکہ وہ باتیں آپ کے ذہنوں میں آ جائیں جنہیں آپ نے ابھی تک سنا نہ ہو یا سنا ہوگا تو بھول گئے ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دنیا زندگی جینے کا سامان ہے، الدنیا کلھا متاع، یہ ساری دنیا زندگی جینے کا سامان ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کا سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ نیک بیوی۔ ہاں نیک بیوی، بیوی تو مل جاتی ہے مگر نیک بیوی بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ بیوی تو سب کو ملتی ہے مگر نیک بیوی قسمت والوں کو ملتی ہے۔ امرأۃ صالحہ کسے کہتے ہیں؟ حدیث شریف میں پہچان بتائی ہے میری ماں بہنوں، سننا، یعنی دنیا کا بہترین متاع نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے۔ اور نیک بیوی کی پہچان نبی نے یہ فرمائی ہے کہ نیک بیوی کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو شوہر کا دل خوش ہو جائے، سمجھ لو وہ نیک بیوی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب شوہر کسی بات کے لیے اس کو بلائے تو وہ حاضر ہو جائے۔ اور تیسری پہچان یہ ہے کہ شوہر اگر باہر چلا جائے کمانے کے لیے یا کسی کام سے تو وہ عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، یعنی شوہر تو چلا گیا ہے ممبئی میں اور یہ آس پاس لوگوں سے نظریں بھیڑائی کر رہی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس طرح کی عورتوں کو اللہ ہدایت نصیب کرے۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ جس کا شوہر باہر چلا گیا اور وہ عورت اپنے نفس کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے، اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے، نبی فرماتے ہیں وہ مرأۃ صالحہ ہے، یعنی وہ نیک بیوی ہے۔
सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बोलो सुभान अल्लाह। और भाइयों एक बात तो बताओ, आप लोगों ने जहन्नम देखा है क्या? अल्लाह अल्लाह। क्यों भाई बताओ भाई, जहन्नम देखा आपने? किसी ने देखा है क्या? आप लोगों में से किसी ने जहन्नम देखना चाहते हो? कोई बोल भी नहीं रहा, क्योंकि हम वो कौम है जो वकीना अज़ाब अन्नार की दुआ करते हैं, अल्लाह हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा। सुभान अल्लाह सुभान। तो कौन देखना चाहेगा जहन्नम? मगर जनवरी की सर्दी का मजा तो उसे ही आएगा जो जून की गर्मी को बर्दाश्त कर सकता हो। वाह 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 वाह। इसलिए जन्नतियों को जहन्नम की खिड़की खोल करके जहन्नम की तपिश दिखाई जाएगी, अल्लाह 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 अल्लाह। और दोज़खियों को भी जन्नत की भीरी भीनी सुहानी हवा महसूस कराई जाएगी, ताकि समझे कि उलमा क्यों कहते थे कि जन्नतियों वाले काम करो। मगर फिर भी अल्लाह से तौबा, मगर आप लोग फिर भी थोड़ी सी जहन्नम की झलकियां देखना चाहते हो तो उस घर में चले जाओ जहां मियां बीवी की आपस में जंग रहती हो, उस घर में चले जाओ, बिल्कुल जहन्नम मालूम होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कितने मर्दों ने खुदकुशी कर ली है औरतों के सताने की दुनिया में। वो घर जहन्नम बना हुआ है कि जिस घर में मियां बीवी की जंग रहती है, लड़ाई होती है। और अगर जन्नत देखना चाहते हो तो उस घर को देख लो जहां मियां बीवी दोनों आपस में खुश रहते हैं और बेहतरीन घर परवान चढ़ता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। अरे भाई, जब बीवी अच्छी होती है, नेक होती है, तो बोलो गरीबी में भी अच्छा लगता है कि नहीं? यार आप लोग कुछ बोल नहीं रहे, समझ में नहीं आ रहा मुझे। अच्छा लगा था ना तब हजरत, तो वो घर बड़ा बेहतरीन है। और एक बात मेरे नबी ने यह भी इरशाद फरमाई थी कि वो इंसान बड़ा खुश नसीब है कि जिसे 3 चीजें मिल जाएं। मिकाइल भाई तवज्जो चाहेंगे आपकी। वो इंसान बड़ा खुश नसीब है कि जिसे 3 चीजें मिल जाएं। कौन कौन? अरे माशाल्लाह, ये शिबू है क्या? चलो वो बच्चा था, जलसा नहीं हुआ था, मेहंदी लगा ली, अल्लाह माफ फरमाए। अब नहीं लगाना भाई कोई है? अरे यार हाँ बोलो, गांव में कुछ तो सुधार करो, कहिए इंशाल्लाह बताया करो कि भाई मर्द मेहंदी नहीं लगाते, है ना? माशाल्लाह, अल्लाह ताला इस बच्चे की उम्र में बरकत दे। बहुत खुशनसीब बच्चा है कि जिसकी शादी के मौके पर ये उलमा आए हैं, हुफाज आए हैं, कुर्रा आए हैं। इंशाल्लाह इस जिक्र मिलाद मुस्तफा की बरकतें इनको भी मिलेंगी, इनके पूरे घर को भी मिलेंगी इंशाल्लाह। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में और इनकी बीवी की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और इस शादी को दोनों फैमिली के लिए बरकत का जरिया बनाए। आमीन आमीन। हज़रात गिरामी, अब ये कहकर के तकरीर खत्म कर रहे हैं। नबी फरमाते हैं वो इंसान बड़ा खुशनसीब है जिसे 3 चीजें मिल जाती हैं। क्या क्या? सबसे पहला अच्छी बीवी। अच्छी बीवी जिसे मिल जाए समझ लो वो किस्मत का सिकंदर है। और दूसरी बात, वो इंसान बड़ा खुशनसीब है कि जिसे अच्छा घर मिल जाए। ये बाहरी शरीफ में लिखा है। अच्छे घर का मतलब यह है कि घर भले से छोटा हो लेकिन जरूरत की सब चीजें हों, पर्दे का भी एहतमाम हो। या घर तो छोटा है, घर तो बेहतर नहीं है मगर पड़ोसी अच्छे हैं। कभी कभी घर तो बहुत अच्छा होता है मगर पड़ोसी बिल्कुल जालिम होते हैं, तो जिंदगी जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हक है, हक है। और तीसरी बात नबी ने फरमाया कि वो इंसान बड़ा खुशनसीब है जिसे अल्लाह चलने के लिए अच्छी सवारी दे दे। तो अच्छी बीवी, अच्छी सवारी, अच्छा मकान, जिसे ये 3 चीजें मिल जाए नबी फरमाते हैं वो बड़ा खुशनसीब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिसे ये 3 चीजें नबी ने फरमाते हैं वो बदबख्ती की अलामत है जिसे ये 3 चीजें न मिले। हजार शादी हो गई, मुबारक फरमाए, बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला इस गांव को आबाद रखे, खुश रखे। आमीन आमीन। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो हाजिर होंगे। आखिर में बस आपसे यही कहना है कि जब आपके घर में दुल्हन आती है तो फिर दुल्हन के साथ बेहतरीन सलूक करो। हमारे यहाँ भारत में जहां महाभारत मशहूर है,
वहाँ सास और बहू की लड़ाई भी बड़ी मशहूर है। जी बड़ी बड़ी स्टैंडर्ड और बड़ी बड़ी ये शानदार बीवी आ जाए मगर सास और बीवी बहू की जमती नहीं, बड़ी प्रॉब्लम है ये। सास भी देखती रहती है 3-4 दिन रोटियां बनाना आती है कि नहीं। जब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो 5वें दिन बोली तेरी माँ ने तुझे सिखाया ही क्या है, खाली मोबाइल चलाती होगी घर में बैठ के, या फ्री का के खा रही है ठंडे एसी कूलर में रह रही है, तेरे यहाँ ये सब कुछ थोड़ी था, तुझे रोटी भी बनाना नहीं आती। खुदारा मेरी बहनों, अगर आप सास हैं तो अपनी होने वाली बहू को ताने ना दिया करो। और आओ उसी को अपने नबी की सीरत से, जब मेरे नबी के निकाह में हजरत आयशा तशरीफ लाई थी तो हजरत आयशा को रोटियां बनाना नहीं आती थी, तो मेरे नबी खुद आटा गूंथते थे और हजरत आयशा को रोटियां बनाना सिखाते थे। आप कहोगे हजरत मर्द कैसे रोटी बनाएगा, तो क्या होटलों में औरतें रोटी बना रही है? मर्द ही तो बना रहे हैं, और औरतों से अच्छी रोटियां मर्द बना रहे हैं। तो ये कोई ऐप की बात नहीं है, अगर बहू को रोटी बनाना नहीं आता तो बहू को रोटियां सिखाओ बनाना। और मियां बीवी को मोहब्बत करने दो, ये उनका हक है। और सीखो अपने नबी से। जब मेरे नबी की हजरत आयशा के साथ शादी हुई तो चूंकि अरब के कल्चर में बड़े बड़े गिलास होते थे, जब और गिलास में पानी होता था, पानी की कमी थी अरब में, तो हजरत आयशा पानी पी करके गिलास को रख देती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब प्यास लगती तो गिलास उठाते और फरमाते आयशा तुमने कहां मुंह लगा करके पानी पिया है? तो जहां मुंह लगा करके हजरत आयशा ने पानी पिया होता वहीं से मुंह लगा करके मेरे नबी पानी नोश फरमाया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अरब के कल्चर में बड़े बड़े गोश्त के टुकड़े होते थे। वहां की 1400 साल पहले कीमा कबाब नहीं बनते थे, बस भूना करते थे, खाया करते थे। तो गोश्त का इतना बड़ा टुकड़ा रखा होता था, हजरत आयशा उठाकर खा लेती थी और उसके बाद खाने के बाद रख देती थी। नबी उठाते और फरमाते आयशा तुमने कहां से खाया है? तो जहां मुंह लगा करके हजरत आयशा तनावुल फरमाती थी वहीं से मुंह लगा करके हमारे नबी तनावुल फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है आपके नबी की सीरत। अमर जिसने अल्लाह को देखा हो उसके दिल में औरतों की मोहब्बत क्या माना रखती है? क्या बात है। मगर मेरे नबी अपनी उम्मत को सिखाने के लिए इस तरह से फरमा रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ताकि मेरी उम्मत के लोग अपनी बहुओं की, अपने घर में आने वाली दुल्हनों की इज्जत करें। और कभी कभी मेरे नबी मजाक भी किया करते थे अपनी बीवी से। बाज लोगों को ऐसा देखा गया है कि वो बाहर तो पिट के आते हैं, मगर घर में दाखिल हो तो बीवी के सामने ऐसे आंखें चढ़ाएंगे लगता है कि बस यही है, पहलवान आ गए हैं कोई। बाहर 10 गालियां सुन करके आएंगे और बीवी पे आकर वो गुस्से को निकालेंगे। हजरात यही वजह है, ये हदीस शरीफ है, गालिबन तिरमिजी शरीफ की हदीस है। एक सहाबी है हजरत मुआविया बिन हकीम कुशैरी, उन्होंने गौर से सुनिएगा, उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह हमारी बीवियों का हक हम पर क्या है? हमारी बीवियों का हक हम पर क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सहाबी तुम्हारी बीवियों का हक तुम पर यह है कि जैसा तुम खिलाओ, जैसा तुम खाओ वैसा उन्हें खिलाओ, और जैसा तुम पहनो वैसा उन्हें पहनाओ। और अगर किसी शरई जरूरत के तहत मारना पड़ जाए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपनी बीवी के चेहरे पर न मारो और उससे बुरा भला न कहो, उससे गालियां न दो और उसे तनहा न छोड़ो, मगर घर में यानी अगर तुम्हारे साथ वो कहीं हो तो घर के अलावा उसे तन्हा ना छोड़ो। ये 5 बातें आपके नबी फरमाते हैं। और इरशाद फरमाते हैं मेरे नबी कि बेहतरीन कामिल ईमान वो शख्स है कि जिसके अखलाक अच्छा हो, और तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के लिए नरम दिल रखता हो। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तो अपनी बीवियों की इज्जत करना सीखो। तो मेरे नबी कभी कभी मजाक भी किया करते थे अपनी बीवी से।
जब हजरत आयशा एक दिन मेरे नबी, बस खत्म कर रहे हैं, एक दिन मेरे नबी के साथ में है हजरत आयशा, तो एक जंग में तशरीफ किसी सफर में है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तारीफ भाई, अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा चलो दौड़ लगाएं। तो हजरत आयशा की उस वक्त नई नई शादी हुई थी, पतली दुबली थी, तो हजरत आयशा पर अर्ज करती है रसूल अल्लाह जी जरूर दौड़ लगाएंगे। अब जब दौड़ लगाई तो हजरत आयशा आगे निकल गई, नबी दौड़ में पीछे रह गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब बहुत सालों के बाद हजरत आयशा का वजन भारी हो गया। एक जंग पर गए हुए थे, मेरे नबी ने सारे सहाबा को भेजा, जाओ तुम लोग आगे चले जाओ, खूब आगे चले जाओ कि निगाहों से ओझल हो जाओ। फिर मेरे नबी ने हजरत आयशा से फरमाया आयशा चलो दौड़ लगाएं। तब हजरत आयशा दौड़ लगाती हैं तो अब की बार नबी आगे निकल गए, वो पीछे रह गए। तब मेरे नबी ने फरमाया आयशा ये उस दिल का बदला हो गया है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो अपनी बीवी से मजाक करना तहजीब के दायरे में, शरीयत के दायरे में ये भी सुन्नत रसूल है ना। मगर अगर बीवी को और शोहर को साथ में खाते हुए सास देख ले तो भाई कयामत आ जाती है। हाँ। और अगर बीवी ने, सास ने ये सुन लिया कि मेरे बच्चे ने, मेरे लड़के ने मेरी बहू को सलाम किया है, तब पूरे मोहल्ले की औरतों के साथ मीटिंग शुरू। लो बहनी, हमारा भैया तो हमारा हाथ से निकल गया, जुमा 8 दिन हुआ है अपनी महरुआ को सलाम कर रहा, बीवी का गुलाम हुई गवाह है। तो यह है शरीयत से दूरी का नतीजा कि हमने सलाम करने को भी बीवी की गुलामी पर महमूल माना है। यह शरीयत से दूरी का नतीजा है। यानी अगर आज शौहर अपनी बीवी को सलाम कर ले तो लोग ये समझते हैं ये कि बीवी का, जो शौहर अपनी बीवी को सलाम करता है वो बीवी का गुलाम होता है। आप चाहे जो समझो, मगर मैंने हदीस शरीफ में पढ़ा है, अपने उलमा से सुना है कि मेरे नबी जब अपने घर में दाखिल होते थे तो अपनी बीवियों को सलाम किया करते थे। पता चला बीवी को सलाम करने वाला बीवी का गुलाम नहीं होता, मेरे नबी का गुलाम होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सुन्नते मुस्तफा। क्या कहने, बहुत उम्दा प्रोग्राम। बस तकरीर खत्म है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप सब अमल करेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करेंगे ना अमल इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और इन माँ बहनों से बस सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आज की शादियों में जो सबसे ज्यादा फिक्र की बात है मुसलमानों के घरों में, इधर देखिए, जो मुसलमानों के घरों में जो सबसे ज्यादा फिक्र वाली बात है वो ये है कि शादी के मौके पर हमारे घरों में बेपर्दगी बहुत ज्यादा होती है। 60 साल की औरतें, 50-50 साल की औरतें जिनके नवासे भी हैं, पोते भी हैं, मगर ये लाली पाउडर लगा करके ऐसा मुंह बनाने बैठी है कि शक्ल भी पहचानने में नहीं आ रही। अब तो सुनते ब्यूटी पार्लर निकला है, वो शक्ल ही को बदल देते हैं, पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है। बुढ़ियां हो गई 60 साल 50-50 साल की औरतें, मगर बेटे की या पोते की शादी है तो पूछो मत इनके मेकअप का। सिर्फ दिसंबर की सर्दी है मगर ये आधी आस्तीन के कपड़े पहन नहीं है। और अगर मौलाना कबीर साहब मस्जिद के मेंबर से कहे कि बहनी पर्दा करो तो ये कहती है ये मौलवी ओल्ड मॉडल है, ये पुराने दिमाग के हैं, इन्हें क्या मालूम कि नया फैशन क्या चल रहा है। मेरी बहन, तुम्हारी इस बेपर्दगी ने हमें शर्मिंदा करा दिया है। पूरे भारत में तुम्हारी इस बेपर्दगी की वजह से शर्मिंदा हो गए हम। पिछले 2 साल से हिजाब का मसला चल रहा है अपने मुल्क में, तुम्हारे पर्दे पर गैरों की नजरें टिकी हुई हैं। दुनिया यही चाहती है कि तुमको नंगा सर देखें, यानी जिस तरह से दूसरी कौमों की बेटियां नंगे सर रहती हैं ऐसे ही वो तुम्हें देखना चाहती हैं। खुदारा तुम कनीज़ फातिमा हो और उस फातिमा की कनीज़ हो कि जिनकी जब मौत विसाल होने वाला था तो सैयदा फातिमा ज़हरा ने वसीयत की थी कि मेरे लोगों, मेरे जनाजे को रात में उठाना, दिन में ना उठाना। कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी
नबी की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए, उस सैयदा फातिमा ज़हरा की कमीज हो, वो फातिमा कि जब पुलसिरात से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों अपनी गर्दनों को झुका लो, क्योंकि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। और अगर हम आपको समझाएं कि भाई अपनी बहन